Hello everyone. Before we start the video, please start sharing it. Please, it's a humble request today because today it's not at all about readings, knowing the future. It's about creating the future. So please, the more you will share, the more people will get aware and will get the benefit. So please, 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 whenever you start watching, first thing you do is please do share. Before we start the video, please share it on your walls so that more and more people can join in and get the benefit out of it. Hi Pallavi, hi Priyanka. Great to see you both. Thank you so much for joining in. And please, today it's my humble request. It's not at all about the ad of my work. It's not at all about the readings. It's just about getting more aware so that we can save more people, so that we can give awareness to more people. So today's topic is why the younger people are getting more heart attacks. What is the cause? What we need to do? What we can do? Please share this video. Hi Pooja. And please be there with me, be here with me on this platform live so that we can connect more and discuss more about it. It's not at all always about readings and knowing the future, what we need to do, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, कार्ड्स क्या कहते हैं. Today it is all about how to create a better future. So let's together create a better future for our next generations, for ourselves. So today's video is all about it. So the people who were expecting only readings from today's session, I'm so sorry for disappointing you, but today's session is really very helpful for many people. This is going to be very helpful. Thank you so much Pallavi. Thank you Pallavi for sharing it. Thank you so much. So let's discuss, let's start. Just wait please. Hi everyone. Thank you so much for coming live with me. Thank you so very much. And as I told, please keep sharing this video as much as you can. I'll be grateful to you क्योंकि आज की जो वीडियो है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है. हाय मंजीत, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. मंजीत, हाय श्वेता, हाय मयूरी. Please, I request, I beg all of you, please share this video on your walls so that more people can join in, more people can get the benefit out of it. As much as I can, I will try to help the people to be more aware. And आज की जो आज का जो सेशन है, आज के जो हमारा लाइव है, ये इट इज़ ऑल अबाउट व्हाई younger people are getting affected by heart attacks, why younger people are dying out of heart attack. So it is all about. So let few more people join in so that we can start, and please share it.
एक ही आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस है, एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ दैट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन योर वॉल्स. हाय मयूरी, आई एम फाइन. हाउ आर यू? I'm sorry. Please share it. Please, please, please. I beg of you, I request you. Please share this video on your walls. अगर आपको भी लगता है बहुत कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनको इस अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ डू शेयर. डू शेयर विद देम. Great Mayuri, great to know that. So, जैसे कि हमारा लास्ट जो वीडियो था वो था that we should we should not take people for granted. हमारा जो लास्ट वीडियो था, इससे पहले का जो लाइव वीडियो था, it was all about why we should not take people for granted, because you don't know how much time you have left, you don't know how much time they have with us. तो इसलिए ये अवेयरनेस भी होनी बहुत ज़रूरी थी कि हमें हर चीज़ को, हर पल को कैसे उनके साथ इंजॉय करना चाहिए. उसी चीज़ से रिलेटेड आज की वीडियो है दैट वाई यंगर पीपल, बिकॉज रिसेंटली वी हैव came to know many people who are dying out of heart attack, and many of them are young ones. So what is the cause, what is the reason that why so many young people are affecting by heart attacks, by heart diseases? This is the topic for today. Hi Vinu ji, hi Ranju, thank you so much all the people who are joining in, thank you so much. Hi Priyadi. Hi Sukhdeep Brad. Hi, how are you? आप सबको दिल से शुक्रिया, सब लोगों को जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं हमेशा on the meantime I post that I am coming live, and all the people who are sitting live always join in, and I am so much grateful to all of you. Hi Gurpreet. So please again I am requesting all of you, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट है इस बारे में डिस्कशन में एक पार्ट प्ले करने का, इस पार्ट का हिस्सा होने का, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो ऑन योर वॉल्स. प्लीज, मे बी many people are not interested because this is not about readings today. Again, thank you so much Gurpreet. I'll share, you give me your WhatsApp number, I'll share with you. Thank you so much. So you love the background music, right? I'll send you give me your WhatsApp number, I'll share with you. तो मुझे लगता है अब हमें शुरू करना चाहिए कि today's topic is why young people are getting heart attack, young people are dying out of heart attack. We are so stressed after Siddharth's death. Yes, I know everyone is very stressed, and यही हमारी मंजीत जी, यही हमारी लास्ट सेशन की डिस्कशन थी दैट द पीपल हु डोंट नो अस, हमने सिर्फ टीवी पे देखा है. हाय साक्षी, हाउ आर यू? तो जो लोग हमने सिर्फ जिनको टीवी पर देखा है, उनके जाने से अगर हमें इतना स्ट्रेस हो रहा है, हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा परेशान है, या जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, तो इसीलिए हमारा लास्ट का सेशन इसी बारे में था दैट डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. You don't know how much time they have left with you, how much time you have to be with them. So please don't take people for granted. ये हमारी लास्ट लाइव सेशन का मेन डिस्कशन था
तो उसी से रिलेटेड आज का डिस्कशन है, क्योंकि यंग लोग बहुत हमें न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, वाई यंग पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड विद हार्ट डिजीजेस. तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल you all let me know who all are live with me, what you think why younger people are getting more affected with heart diseases, what your point of views, because today's session is not about one side only. I am not going to speak only. You have to take part equally, so that we can discuss. I posted that today's discussion is not only my gyan only, so please keep posting, keep writing what you feel, what can be the main cause, what can be the reason of younger people getting affected with heart diseases, what you think. Please let me know. I would love to hear it from you. जो भी लगता है, जैसे भी आपको लगता है, प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी, ताकि हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें. आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है हमारा इस चीज़ का परफेक्ट आंसर? प्रिया दी, परफेक्ट आंसर. स्ट्रेस, पुअर स्लीप पैटर्न्स एंड लाइफस्टाइल. ऑसम. सो अगर और कोई भी लिखना चाहता है, प्लीज़ कीप शेयरिंग. एंड प्लीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग एंड रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ डू शेयर. जिसने भी लाइव अपने उसमें रखा हुआ है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस लाइव में, प्लीज़ डू शेयर इट ऑन योर वॉल्स, ताकि बहुत लोग इसको देख पाएँ. अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, परफेक्ट आंसर प्रिया दी. So let's move on, as nobody else is writing anything. So Priyadi, you have given the perfect answer. Stress, unhealthy diet pattern, unhealthy lifestyle. Okay, my dad passed away, my brother and grandfather passed away with heart attack, but they were well fit and happened all in sudden. Yes, हमारा आज का डिस्कशन यही है गुरप्रीत बराड़. हमारा आज का डिस्कशन ही इस बारे में है कि वाई यंग पीपल, क्योंकि यंग पीपल तो हमेशा फिट ही होते हैं. वी हैव नेवर, हमने बहुत कम सुना होगा ये इस बात को कि कोई ऐसे यंग लोगों की डेथ हुई है जिनको कोई ऑलरेडी डिजीजेस थी, जिनको कोई प्रॉब्लम थी. मोस्टली हमें लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था, ऑल ऑफ ए सडन ये न्यूज़ आई हमें दैट ही इज़ नो मोर, शी इज़ नो मोर, राइट. तो यही हमारी डिस्कशन का आज का पार्ट है कि वाई यंगर पीपल, फिट यंग पीपल, वाई दे आर गेटिंग मोर अफेक्टेड. यही आज का हमारा हिस्सा है. सो द फर्स्ट मेन कॉज इज स्लीपलेस नाइट्स, deprivation of sleep. So the first reason why younger people are getting affected with heart diseases, with heart attacks, with cardiac arrests, and they are dying out of them, the first most reason that is affecting them is deprivation of sleep. हमने कोविड के दिनों में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनको लगता है, अब हमारा ना नेक्स्ट आंसर क्या हो सकता है कि वो तो सब कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो लेट सोते हैं, सिर्फ यंग नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं. माई फादर इवन नेवर एवर हैड अ headache. Yes, I'm so sorry Gurpreet to hear about the loss of your father and other members. I'm so sorry to hear that. So today's discussion is all about it, and the main cause is deprivation of sleep. जब हम टाइम पर नहीं सोते हैं, हमें लगता है कि सब लोग ही तो ऐसे कर रहे हैं ना. कोविड ने तो वैसे भी सबको एक नया ही लाइफस्टाइल दे दिया है. कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें बेटर आई हैं, नो डाउट बेटर भी आई हैं. जो लोग फैमिली के साथ नहीं बैठते थे उन्होंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा. जो लोग अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे उन्होंने अच्छे से एक्सरसाइज की होगी, बिकॉज दे हैव इनफ टाइम टू स्पेंड ऑन देमसेल्व्स. लेकिन कोविड ने एक चीज़ बहुत ख़राब की है, और
again it has started from myself only that I am blaming COVID. So it's not about the COVID only. I'm just giving you the reason कि हम yes working on computers, mobiles, release of melatonin. Yes, थैंक यू सो मच प्रिया दी, आपने सारी स्टोरी लिख डाली है यहाँ पर. सो हमारा जो मेन कॉज है इस डिजीज़ को अट्रैक्ट करने का वो है स्लीपलेसनेस और रात को ना सोना, मतलब बहुत कम सोना. अब बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लेट सोते हैं या नहीं सोते हैं या सिर्फ रात में 4 घंटे 3 घंटे सोते हैं. Still they are doing awesome jobs. They are excelling in their fields, which is perfectly true, which is true. बिल्कुल ठीक बात है. बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर हैं जो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, जो सुनने में आया है कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं. Still he is running, he is having a healthy lifestyle and life. लेकिन there are very few people who are living such kind of lifestyle and still they are fit. Very few people. Everyone is different physically, mentally, spiritually, soul wise. Everyone is different. We are all different. You are not me, I am not you. They are not you, you are not them. बिल्कुल इसी तरह से कुछ ही लोग, जैसे आपने सुना होगा हार्ट अटैक से अगर जा रहे हैं, कुछ ही लोग जा रहे हैं ना. एवरीवन इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, एवरीवन इज नॉट dying out of heart attack. Some people are dying, some people are getting affected. The same way some people are doing such kind of thing, they are sleeping for 4 hours for 5 hours या 3 hours, still they are living a healthy life. तो we don't need to compare ourselves with someone else. सबकी बॉडी अपनी होती है, सबकी बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है. सो द फर्स्ट मेन कॉज इज sleep. I myself is not a person who sleep on time and who take very good sleep. So this is again, I told you many times कि मैं जब आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ तो पहले मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का लेसन है, मेरी लाइफ में जो इससे मुझे जो सीखने को मिला है. I keep sharing such things with you all. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ही चीज़ है जो मुझे लगता है हम लोगों में से सबको इस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल का एक मेन हिस्सा बनाने की बहुत ज़रूरत है. बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि टाइम नहीं होता है, हमारा काम ऐसा है, हम रात को लेट फ्री होते हैं या हमें टाइम ही रात को मिलता है, हम सारा दिन अपना काम करते हैं और उसके बाद हमें टाइम ही रात को मिलता है टीवी देखने का, मोबाइल्स देखने का, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का, विच इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू देम. बट क्या ये सब करना, सोशली एक्टिव होना, एंटरटेनमेंट में इतना इंडल्ज होना या कुछ भी ऐसा करना, क्या आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जस्ट आस्क योर सेल्फ, इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ? Then you should go ahead. Instead of blaming COVID, instead of blaming other people, instead of blaming that I have lot of stress, I have no time for myself, I have no time to sleep, I have many responsibilities. I don't think कि अपनी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं. The problem is that we are being very greedy these days. हमारा लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा है. हमें लगता है कि जो कमा सकते हैं वो कमाएं, जितना काम कर सकते हैं, जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, बस आज अभी कर लें जितना कर सकते हैं. और इस भागा दौड़ी में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं दैट वी हैव वन लाइफ एंड दिस लाइफ इज़ रियली वेरी सिंपल. हमने खुद ही उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है क्योंकि जब हमारी ग्रीड्स बढ़ रही हैं, नो डाउट फिर हमारे एफर्ट्स भी बढ़ जाते हैं.
जब हमारे एफर्ट्स बढ़ जाते हैं फिर हमारा टाइम कम रह जाता है, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है वो हर चीज़ करने का जो हमें अच्छी लगती है। फिर हम सिर्फ वो करते हैं जो हमें लगता है कि जिससे हमारे पास चीज़ें और ज़्यादा हो सकती हैं, पैसा, प्रॉपर्टीज़, जो भी जिसकी लाइफ में जिसको जिस चीज़ की ग्रीड होगी, इच्छा नहीं कहेंगे इसको, ग्रीड कहते हैं, क्योंकि हम सबको जीने के लिए सिर्फ कुछ खाना, कपड़े और घर वो सबके पास होता है। लेकिन जब हमारी ये दौड़ चल जाती है, ये जो ऐसी दौड़ जिसमें हमें लगता है कि किसी से पीछे ना रह जाएं हम, ये बनती है हमारी यंग पीपल की, जो ये कॉज की हम बात कर रहे हैं उसका रीज़न बनती है यंग पीपल मोर गेट अफेक्टेड with heart attacks due to stress. Hi Sarika ji, I'm not going to do any reading here. Thank you and sorry once again. तो ये रीज़न बनती है हम लोगों के लाइफस्टाइल को और पुअर करने का जब हम इतना स्ट्रेस लेते हैं। द सेकेंड मोस्ट, आई एम सो सॉरी सारिका जी, वी आर नॉट डूइंग एनी टैरो कार्ड रीडिंग हेयर। तो दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है यंग लोगों के इतने ज़्यादा अफेक्टेड होने का विद हार्ट अटैक, विद कार्डियक अरेस्ट, इज स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है हर छोटी चीज़ का। आप किसी छोटे बच्चे को भी पूछ कर देखेंगे ना, उसकी लाइफ में भी इतना स्ट्रेस होगा ना कि वो आपको बड़ी बड़ी कहानियाँ बता सकता है कि वाई ही इज़ सो स्ट्रेस, वाई ही इज़ सो स्ट्रेस्ड। उनके दिमाग में जो आजकल चल रहा है, वी डोंट हैव एनी आंसर। और मुझे लगता है कि यही मेन कॉज है यंग पीपल का, क्योंकि जो जनरेशन आज हमारे सामने है, जो हम देख रहे हैं, जिसका मतलब इंटरनल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दे आर ऑल एंटरटेनिंग देयर आउटर वर्ल्ड ओनली। उनको बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या हिट हो रहा है, दे आर ऑल डूइंग सच थिंग्स, दे आर ऑल लिविंग फॉर द आउटर वर्ल्ड ओनली। तो दिस इज द टाइम टू टेल आवर न्यू जनरेशन दैट लेट्स गेट बेटर फॉर योर सेल्फ, फॉर आवर सेल्फ, not for the social media, not for the society. Will you be doing tarot card? No, I'm not doing any tarot card reading today. I'm so sorry, Manjeet. तो आज अभी जो हम बात कर रहे हैं why young people are getting more affected, the first cause is deprivation of sleep, कम सोना, और फिर नई नई चीज़ें, नए नए रीज़न ढूंढ लेना that we don't have time, we have more work to do and we get time on at nights only to do whatever we want to with internet, with social media. जो भी रीज़न आप अपने आप को दे सकते हैं वो अब आप देंगे। Again, it is a humble request for all the younger people, all the younger generation की थोड़ा सा ठहराव लेकर आए। इतनी भागा दौड़ी, यहाँ कुछ नहीं रह जाना। मेरी हर वीडियो में ये लाइन मेरी फेवरेट है, हमेशा रहेगी कि यहाँ कुछ साथ में नहीं जाना है आपके, जिसके लिए इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। सो बेटर है थोड़ा ठहराव लेके आएँ अपनी लाइफ में, टाइम पर सोएं, हर वो चीज़ करें अच्छी लगती है, जो आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में अच्छी लगती है उसको करें, रादर देन प्लेइंग अ ब्लेम गेम। हाय रजनी, हाउ आर यू? ब्लेम गेम छोड़ना बंद करें कि मैं सो नहीं सकती या सो नहीं सकता टाइम पे, उसके पीछे 100 रीजंस ढूंढेंगे। अब आप ब्लेम गेम में मत पड़ें। स्ट्रेस है उसके लिए तो अनगिनत अनकाउंटेबल रीजंस होते हैं हम सबके पास, दैट व्हाई वी आर स्ट्रेस्ड। वी नेवर फाइंड कि वी हैव द की। प्रॉब्लम आ रही है, आएगी, आई थी, आगे भी आती रहेगी। इट्स नॉट अबाउट कि एक बार प्रॉब्लम आ गई है
अब लाइफ लॉन्ग आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इट्स नॉट अबाउट इट. द प्रॉब्लम इज हाउ वी डील विद इट. बहुत सारे लोगों को झटका लग रहा है ना यंग जनरेशन की ऐसी न्यूज़ सुन के कि क्या हो गया, कैसे हो गया. बट देयर इज़ नो पॉइंट इन ग्रीविंग. दुख मनाने से हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला. सो पॉइंट इज़ लर्न द लेसन. क्योंकि आजकल हमारे पास जो सोशल मीडिया है वो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहा है. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम सुनते हैं. उस टाइम हमें लग रहा होता है कि यस दिस इज़ द पॉइंट दैट आई नीड टू लिसन, आई नीड टू लर्न इट. लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं. सबको पता है कि अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है. वी ऑल नो दैट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. आई नो दैट. बट डू वी रियली अप्लाई इट इन आवर लाइफ थ्रू द प्रैक्टिसेस? अभ्यास. किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज अभ्यास, प्रैक्टिस. सो वी आर human beings, we have the brain, we have the wisdom, so why don't we choose to learn from it? हमें ज़रूरत है इस चीज़ को हमारी लाइफ में अवेयरनेस के साथ लेकर आने की कि ज्ञान सिर्फ सुनने से, पढ़ने से नहीं हमारी लाइफ में कोई फ़ायदा लेकर आएगा. Until we make the practice of this ज्ञान. नॉलेज लेने से कोई फ़ायदा कभी नहीं मिल सकता. अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से कभी कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता. प्रैक्टिस करने से फ़ायदा मिल सकता है. हम सबको पता है कि अच्छे लाइफ जीने के लिए या अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है. डू यू थिंक कि सिर्फ इसका पता होने से कि अच्छी सेहत चाहिए तो अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी सेहत मिलेगी, क्या सिर्फ इस चीज़ से हमें कोई फ़ायदा मिल सकता है? Until we eat good food, eat good diet to keep ourselves healthy. I'm sorry for the inconvenience. तो बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ ज्ञान भरी बातें सुनने से हमारी लाइफ बेटर नहीं हो जाएगी. नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन. नाउ इज़ द टाइम टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस किसी भी फील्ड में. जब आज बात सेहत की हो रही है, आज बात डिजीज़ की हो रही है एंड स्पेशली हार्ट अटैक की हो रही है, तो मुझे लगता है इस पॉइंट को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें अच्छी सेहत पाने के लिए अपना ध्यान रखना कितना इम्पॉर्टेंट है. जितनी मर्ज़ी आप एक्सरसाइज कर लें, जितनी मर्ज़ी आप अच्छी डाइट ले लें, जब तक आप किसी ऐसे स्ट्रेस में हैं जो आपको लगता है कि धीरे धीरे आपको दीमक की तरह खा रहा है, आपकी कोई भी लाइफस्टाइल में जो की हुई चेंजेस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकती. इट इज़ गुड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक योर मेडिकेशंस ऑन प्रॉपर टाइम. जो भी आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी आप करते हैं, कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स. लेकिन इन सब चीज़ों के करते हुए आपने बहुत सारे लोग ऐसे सुने होंगे कि इतना हेल्दी लाइफस्टाइल था फिर भी ऐसा कैसे हो गया. तो आप खुद सोचने की कोशिश करें कि ऐसा कैसे हो गया. इतना हेल्दी लाइफस्टाइल, इतनी एक्सरसाइज. समटाइम्स एक एक्सरसाइज का एक और पॉइंट बताती हूँ कि कई बार ओवर एक्सरसाइज इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर सेल्फ, फॉर यू. ओवर एक्सरसाइज ऑल्सो आपके लिए ना एक एक्सरसाइज करना इज़ अ गुड पॉइंट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, लेकिन ओवर एक्सरसाइजिंग बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है. किसी चीज़ को इतना थका देना कि उसको आराम का समय ना मिले, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ अच्छे से चलेगी. हम कोई भी मशीन भी चलाते हैं ना थोड़ी देर, किसी भी तरह की, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी भी तरह का, जब उसको भी चलाते हैं ना थोड़ी देर के लिए उसको भी पॉज करना पड़ता है बीच में, ये सोचकर कि उसको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है.
तो इस तरह अगर आप फिजिकली इतने एक्टिव हैं कि आप 24 घंटे भागा दौड़ी में हैं, या मेंटली आप इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि 24 घंटे स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, तो इससे बड़ा रीज़न और कोई हो ही नहीं सकता आपको अनहेल्दी करने का। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जीन्स में था, हेरिडिटरी है, किसी और को है, फैमिली में नहीं था, आई एम द फर्स्ट पर्सन। आपको कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना अगर आपको समझ आ रहा है कि आपका लाइफस्टाइल ओवर एक्टिव है, तो प्लीज़ थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है। भागना बहुत अच्छी बात है, एक्टिव रहना और भी अच्छी बात है, लेकिन इतना एक्टिव रहना कि ठहराव ख़त्म हो जाए, वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और आजकल की यंग जनरेशन तो मतलब आजकल की यंग जनरेशन में ठहराव कहीं नज़र नहीं आ रहा, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ देयर डिजीजेज। So we need to take care of our health, our sleep, our stress level। हर चीज़ कीजिए, जो करना चाहते हैं लाइफ में वो करिए, लेकिन अपनी सोने का, ताकि आपको कंप्लीट अच्छी नींद मिले सोने का, और आपको स्ट्रेस कम से कम मिले लाइफ में। इन दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हों, आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, स्पेशली रिगार्डिंग योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर स्लीप एंड स्ट्रेस, स्पेशली द क्रॉनिक स्ट्रेस। People think money is more important. Yes, Hina, Sachin, thank you so much. Yes, people think that money is more important than the health. बहुत जल्दी लोगों को इस चीज़ से समझ आएगी, आ भी रही होगी। इतने सारे इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिल रहे हैं, इतनी यंग जनरेशन में इतने यंग पीपल जो दुनिया से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों हम इतना अपने नाम के पीछे, अपने नेम एंड फेम के पीछे इतना तेजी से दौड़ रहे हैं कि हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना कहीं भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। अगेन, हेल्थ को प्रायोरिटी देने का मतलब बिल्कुल भी सिर्फ ये नहीं है कि टेकिंग गुड केयर ऑफ हेल्थ मीन्स डूइंग एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट। डू इट। एक्सरसाइज करना हमेशा ही सेहत के लिए अच्छा होता है। कभी किसी को भी पता होगा, किसी ने पढ़ाई की है नहीं की है, उसको भी पता होगा कि एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करना, हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान ना रखना, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेट अ गुड हेल्थ इज टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड। जब आप सोएंगे तब भी आपके माइंड को, ब्रेन को आराम मिलेगा, और जब आप स्ट्रेस कम लेंगे तब भी इसको आराम मिलेगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर माइंड। क्या सारा दिन सोचते रहते हैं, इस चीज का खास ध्यान रखें। खाने के लिए जो चाहिए वो मिल रहा है ना, पहनने के लिए जो कपड़े चाहिए वो भी हैं, रहने के लिए जो छत चाहिए वो भी है। सो वाई टू स्ट्रेस दैट मच? क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो? थोड़ा ठहराव लाने का मतलब ही यही है कि चीजों के पीछे दौड़ना थोड़ा कम कर दें। सब चीजें अलाइनमेंट में आप तक जरूर पहुंचेंगी when you will be stable with your thoughts। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, प्यार से बैठें, अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे ठहराव लेकर आना है अपनी लाइफ में। और अगर आप खुद ही अभी यंग हैं तो ज़रा सीखें कि ठहराव लेकर आना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है।
ज़्यादा तेज़ भागने से कोई चीज़ ज़्यादा तो मिलने वाली है नहीं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे तो चीज़ें शायद बेटर मिलेंगी और जल्दी से मिलेंगी। तो जिन लोगों को ये लगता था कि कम सोना कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे सोते हैं, उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल एक बॉडी पैटर्न होता है। मेरा बॉडी पैटर्न शायद आपसे मैच नहीं करता, आपका मुझसे मैच नहीं करता। हम सबका अलग अलग बॉडी पैटर्न है। किसी की बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है कम सोने से, किसी की बॉडी कम अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। हमें नहीं पता हमारे अंदर की जो मशीन्स हैं, जो हमारे सारे पार्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। सो वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ दिस मशीन। कुछ लोग मंदिर कहते हैं शरीर को, स्पिरिचुअल लोग मंदिर कहते हैं शरीर को, प्रैक्टिकल लोग शायद कहेंगे ये मशीन है। जो समझ में आता है वो कह दीजिए, जो समझ में आता है वो समझ लीजिए अपने शरीर को, लेकिन टेक गुड केयर ऑफ इट। ठहराव से जिएंगे तो लंबा जिएंगे, धीरे जिएंगे तो ज्यादा जिएंगे, तेजी से जिएंगे तो तेजी से ही चले जाएंगे। सो ठहराव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। द फर्स्ट कॉज ऑफ हार्ट डिजीजेस इज deprivation ऑफ स्लीप, नींद का कम पूरा होना, एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीजन इज क्रोनिक स्ट्रेस। हर समय चिंता करना, स्ट्रेस लेना, और फिर ब्लेम गेम में पड़ जाना कि स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हैं। सबके पास होते हैं भाई, सिर्फ आपके पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड। एक छोटे 4 साल के बच्चे को भी पता होता है आजकल की लाइफ में भी स्ट्रेस क्या होता है। कभी सुना नहीं था कि छोटे बच्चों को एसिड बनता है कभी। और आज आप किसी छोटे बच्चे से बात करके देख लीजिए, जब वो वॉमिट करता है ना, तो उससे अगर पूछा जाए क्या हुआ, तो वो बच्चा आगे से, आई हैव सीन, वो बच्चा जब आगे से कहता है ना एसिड बना है, तो रियली ऐसा लगता है कि अच्छा बच्चों को भी एसिड बनता है। नहीं तो हमारी माँ कहती थी ना, बच्चों को ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बच्चों का कभी सिर नहीं दुखता, बच्चों को कभी वॉमिट नहीं होती, बच्चे कभी थकते नहीं हैं। ये तो हम सुन सुनकर बड़े हुए हैं। जो लोग इसी जनरेशन के होंगे वो सब अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं मेरी इस बात के साथ कि हमारी मदर्स हमें ये कहकर ही ठीक फील कराती थी कि बच्चों को कभी थकावट नहीं होती है, और हम मानते भी थे कि बच्चों को थकावट नहीं होती है। आज हम खुद ही ऐसे स्ट्रेस लेवल लेकर घूम रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि स्ट्रेस नहीं होता है। हर छोटी चीज हमें परेशान कर देती है, कोई छोटी चीज हो हम तैयार बैठे होते हैं परेशानी लेने के लिए, क्योंकि हमने अपने आसपास का जो फील्ड है, जो ऑरा है, वो ऐसा बना लिया है जहां बड़ी इजीली कोई कुछ भी रख के चला जाएगा, हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। चाहे स्ट्रेस हो, चाहे फियर हो, चाहे डाउट हो, अनहेल्दी कोई भी चीज हो, कोई भी कुछ भी रख के जाएगा, वी आर ऑलवेज रेडी टू एब्जॉर्ब इट। हमने ये सीखा ही नहीं कि कैसे इन सब चीजों से ऊपर उठना है। हाय सीमा। सो नाउ इज द टाइम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव द चॉइस। आपके पास चॉइस है। आप स्ट्रेस लेना चाहते हैं या स्ट्रेस देखकर सामने दिख रहा है ये चीज है, स्ट्रेस दे सकती है, अब इसमें से आपने स्ट्रेस लेना है या उस चीज को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में सोचना है। एवरीबडी हैव स्ट्रेस। आज की लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कहेगा कि मुझे किसी चीज का कोई स्ट्रेस नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि हमें लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ परफेक्ट ढूंढने की जरूरत है, लेकिन हमारी आदत बन जाती है कि लाइफ में पूरा दिन अच्छा बीता है, आज सुबह उठे सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, दोपहर तक और अच्छा हुआ, शाम को एक छोटा सा इंसिडेंट खराब हुआ ना, तो हमने एक टैग दे दिया कि आज का सारा दिन बेकार था। वी फॉरगेट कि कितनी चीजें अच्छी भी तो हुई हैं सारे दिन में।
हेल्थ अच्छी चल रही है, परफेक्ट चल रही है, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ और हमने कह दिया कि पता नहीं क्या है, मुझे तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हम भूल गए कि इतने दिन तक, इतने सालों तक इस शरीर ने कितने अच्छे से साथ दिया है ना हमारा। क्या हमने कभी उसका थैंक्स बोला है? क्या हमने अपनी बॉडी को उस तरह पैम्पर किया है जितना उसने हमारा साथ दिया है? रिलेशनशिप में थोड़ी सी टेंशन होती है, मैं स्ट्रेस की बात कर रही हूँ यहाँ पर अभी, कि कैसे हम तैयार रहते हैं हर छोटी चीज़ का स्ट्रेस लेने के लिए। उसकी ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। छोटी सी रिलेशनशिप में कोई बात हुई, किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ी सी छोटी सी बात हुई, हम सब भूल जाते हैं कि उस रिलेशनशिप ने हमें कितना कुछ अच्छा भी तो दिया है। भूल जाते हैं ना हम सब लोग। हमें याद रहता है तो सिर्फ एक वो चीज़ जो उस रिलेशनशिप में खराब हुई है, और वो काफ़ी होती है इतनी सारी अच्छी चीज़ों को भुलाने के लिए। सोचिए किस लेवल के नेगेटिव सराउंडिंग्स में, नेगेटिव ऑरा में हम लोग जी रहे हैं कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हुई, चल रही थी, कोई बात नहीं, एक बुरी चीज़ हुई, वो हावी हो गई उन 10 अच्छी चीज़ों पे, और वो रिलेशनशिप हमने फेल कर मतलब डिक्लेयर कर दिया कि ये फेल हो गया। उस इंसान से रिश्ता तोड़ दिया, डिस्टेंस बना लिया, खुद तकलीफ में रहे, मन में पता नहीं क्या क्या सोचते रहे। क्या ये सही है? इज इट फेयर कि लाइफ ने इतना कुछ अच्छा दिया है, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमेशा। एक चीज़ बुरी होती है, उसको क्यों नहीं फॉर ग्रांटेड लेते कि कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं ना उस अच्छी चीज़ पे जो इससे बेटर इतने सालों से चल रही थी, उस पे फोकस करते हैं। ये हम नहीं कर पाते, और फिर यही रीज़न बनती है हमारे स्ट्रेस का, क्योंकि प्रॉब्लम सामने दिखी कि ऐसी हुई है, लेकिन उसमें डील हमने गलत तरीके से कर लिया। उसको हैंडल करने की जगह उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचकर और नेगेटिव उसको एनर्जी दी, और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया, और फिर वो एक बड़ा रीज़न बन गया हमारे स्ट्रेस का। फिर हम कहते हैं जी हमें तो बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस लिया क्यों? पहले क्यों नहीं जाने दिया उस स्ट्रेस को? क्यों नहीं उस प्रॉब्लम को हैंडल करने की अच्छे से कोशिश की ताकि वो स्ट्रेस में ना बदले? तो स्ट्रेस इटसेल्फ कभी भी आता नहीं है। स्टॉप सेइंग कि सबके पास स्ट्रेस होता है, सबके पास नहीं होता है। कईयों को अच्छे से डील करना आता है उस स्ट्रेस के साथ। प्रॉब्लम होती है, नो डाउट, स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस हम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद बनाते हैं। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है। प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, ये रीज़न बनता है अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाने का, क्रिएट करने का स्ट्रेस को। क्योंकि जिसने अच्छे से डील कर लिया उसको तो स्ट्रेस नहीं हुआ, इसका मतलब स्ट्रेस तो अपने आप तो नहीं था ना उस जगह पर, हमने क्रिएट किया है स्ट्रेस को। इसलिए अपने दिल का खास ध्यान रखें, और दिल, जैसे हमने अभी बात की कि टाइम पर सोएं, अच्छे से अपनी नींद पूरी करें, बहुत अच्छे से। और अच्छे से नींद पूरी करने का मतलब, अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा ना तो आपको नींद डेफिनेटली अच्छे से आएगी। फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज रिलैक्स योरसेल्फ। दौड़ में मत भागें। अच्छी जिंदगी जीनी है ना, अच्छी जिंदगी अपने लिए बनाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट अच्छी डालने के लिए कुछ अच्छा करते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी देखी होंगी इन दिनों में कि सिर्फ लोग पोस्ट के थ्रू अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। रियल लाइफ में क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रियल लाइफ में चाहे उससे बिल्कुल ऑपोजिट ही हो रहा हो। सो स्टार्ट लिविंग योर लाइफ फॉर द रियल लाइफ, not for the Facebook and Instagram, not for the social media. हम कभी भी कुछ अच्छा करते हैं, कैसे फटाफट से फोटो क्लिक करके पोस्ट डालने की कोशिश करते हैं ना, विच इज़ गुड। बुरा नहीं है इसमें कुछ भी, बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि पोस्ट करना बंद कर दें, ये एक अपनी अपनी आदत होती है, एंड विच इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन सिर्फ फोटो के लिए ही ये सब करना
ये सही नहीं है। फोटो के लिए ये सब करने का मतलब ये है कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करना, दैट वी आर सो कूल, वी आर सो स्मार्ट, वी आर सो एक्टिव। एक दिन वॉक पे गए नहीं और साथ साथ फोटो डाल दी, रनिंग, ये वो, एक्सरसाइजिंग, गोइंग टू जिम, लोगों को दिखाने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। जितनी सिंप्लिसिटी में रहेंगे ना, उतनी रिलैक्स्ड लाइफ रहेगी आपकी। जितनी हवा में उड़ने की कोशिश करेंगे, जितनी ग्राउंडिंग कम होगी आपकी, उतनी हवा में और उड़ेंगे। और ग्रो सिर्फ वो चीज़ करती है जो ग्राउंड पर होती है। हवा में रहने वाली कभी कोई चीज़ ग्रो नहीं कर सकती। हवा में उड़ने वाला गुब्बारा नहीं लंबा चल सकता, और हम और आप क्या चीज़ है। और ग्रो सिर्फ वो करता है जो धरती पर रहता है। इसलिए स्टे ग्राउंडेड, स्टे सिंपल, स्टार्ट लिविंग सिंपल लाइफ, लव योर फैमिली, लव योर सराउंडिंग्स, जैसे हैं अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्यार से रहें, विदाउट एनी जजमेंट्स। डोंट मेक एनी काइंड ऑफ जजमेंट्स। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जज करना, ये सब रीज़न बनती हैं हमारे स्ट्रेस का। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हेल्दी रहे, बेटर रहे, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग समथिंग। सिर्फ नॉलेज लेने से, ये वीडियो सुन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ उस तरह से जिस तरह आपको लगे कि कल को जब आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे तो आपको प्राउड फील होगा, आपको अच्छा लगेगा कि वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अगर आज की आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपके बच्चे आपको फॉलो करें, मेक श्योर कि अगर आपके बच्चे आपको आइडेंटिकल ऐसे ही कॉपी करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपका आंसर हाँ है, देन प्लीज़ कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स वट एवर यू आर डूइंग। और अगर आपका आंसर ना है तो प्लीज़ मेक अ मूव, डू समथिंग, चेंज समथिंग इन योर लाइफ स्टाइल, ताकि जब वो कॉपी किया जाएगा तो आपको बुरा ना लगे, आपको वही देखकर कुछ बुरा ना लगे जो आप खुद कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ। अगर आप लोगों का कुछ बोलने का मन है, अगर आप लोग कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर इट विद मी। लेट मी एड समथिंग इन माई नॉलेज ऑल्सो। प्लीज़ शेयर समथिंग एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जहाँ पर जाएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खामखा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कुछ ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको अपनी लाइफ बेटर करने का कोई मौका मिले, कुछ अवेयरनेस आए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। And stop blaming people, circumstances, in your surroundings, people, relationships. Stop blaming them. आज जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आज की जो हमारी वीडियो है ये बिल्कुल भी रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, दैट हाउ योर फ्यूचर विल बी। इट्स अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। तो अपना फ्यूचर बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज की वीडियो उस बारे में है। अपने रिलेशनशिप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने बीते हुए टाइम को, सर्कमस्टांसेस, जो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं लाइफ में जो आपको अनईजी फील करवाते हैं या अनहेल्दी लगते हैं, उनको ब्लेम करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। सो स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम एंड स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। You have the charge to deal with the situation, whether you want to deal with it or you want to get stressed with it. You have the choice. क्योंकि तकलीफ थोड़ी देर के लिए हो सकती है, नो डाउट,
अभी रिसेंटली हमने जो न्यूज़ सुनी है वो सुन के एक तकलीफ़ होती है दैट वाई यंग पीपल आर गोइंग सो अर्ली, वाई इज़ दिस हैपनिंग ऑल अराउंड। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन उनके बारे में सोचते रहने से, ग्रीव करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीने, बट फाइनली you have to take the decision that you want to come out of this grief or not. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ग्रीफ में लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं, उस विक्टिम मोड का एक पार्ट बनना चाहते हैं कि ये हो गया है, क्यों हो गया, अब क्या करें, बेचारा या बेचारी बनना चाहते हैं, तो आपके हाथ में है ये। और या फिर आप उस चीज़ से कुछ लर्न करना चाहते हैं कि ये जब हुआ इसके पीछे रीज़न ये था, मेरी लाइफ में इससे क्या सीख मुझे मिलती है, नाउ आई हैव टू लर्न इट एंड ग्रो फ्रॉम इट। विक्टिम मोड में बैठे रहने से कभी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हाय मिली, तो यू हैव टू मेक अ चॉइस whether you want to learn from it or you want to get stuck with it. It's up to you. So make a wise choice. Deal with it. Don't get stressed over. Just deal with it. So I think we have Namaste. So I think we have talked enough about it. How to stay healthy, how to keep your heart healthy. Don't deprive yourself from sleep. Don't take too much stress. Stress नहीं लेना है. Want to let go. Lovely Jaimsam. Thank you so much, Millie. Thank you. Millie, I'm not getting your point. Want to let go means you want to let go for something. So please don't take stress. लाइफ बहुत छोटी सी है। जितना खुश रह सकते हैं, जितना दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं, वो देने की कोशिश करें। Thank you so much, Damayanti ji. As usual, let go and not become a victim of him. Yes. Okay. Thank you so much for giving me the explanation. Let go and not become a victim of anything. Yes. Let go everything that is happening around you. Don't take too much stress. जैसे कि कोई चीज़ लाइफ लॉन्ग हमारे साथ नहीं रहती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सर्कमस्टांसेस हो, कोई इवेंट्स हों, कोई रिलेशनशिप्स हों। बिल्कुल इसी तरह से अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी चीज़ साथ नहीं रहने वाली। तो प्लीज़ कनेक्ट विद एवरीवन बट डोंट अटैच विद एवरीवन। दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम इंसान हैं, हमें आदत होती है अटैचमेंट रखने की सबके साथ, बट the universe always gives us the lesson that connect with everyone but don't get attached with anyone. क्योंकि कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है अटैचमेंट से। कनेक्शन कैन बी लाइफ लॉन्ग एंड आफ्टर लाइफ ऑल्सो, बट अटैचमेंट कैन बी जस्ट फॉर द लाइफ वी आर लिविंग हेयर राइट नाउ। तो कनेक्शन सबके साथ बनाएं, सबके साथ कनेक्ट करें, लेकिन अटैचमेंट नहीं। सो लेट गो। अच्छी हो बुरी चीज़ हो, अटैचमेंट किसी भी चीज़ के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छी चीज़ साथ रहती है हम इतने अटैच हो जाते हैं, फिर जब अच्छी चीज़ नहीं रहती है फिर हमें दुख लगता है, फिर हमें तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ का कारण था अटैचमेंट। सो डोंट गेट टू अटैच्ड टू एनीथिंग। Stay connected with everything.
hope you are getting my point. So this was all about today's session, and I think कि मेरा जो एक्सप्लेन करने का जो पर्पस था, दैट वाई यंग जनरेशन, यंग पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड विद हार्ट डिजीजेस, वो क्लियर होगा सबको. प्लीज़ टाइम पर सोएं, अच्छे से अपनी नींद को पूरा करें. एंड दिस वाज द फर्स्ट मेन रीज़न. एंड द सेकेंड रीज़न इज डोंट टेक टू मच स्ट्रेस. चिंता चिता समान है, ये हमने सुना है, ये हमने गीता में भी पढ़ा है. सो प्लीज़ इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि चिंता चिता समान है. तो प्लीज़ इससे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें, नहीं तो ये हमें जला कर राख कर देगी. सो प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ योर ब्रेन, ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर माइंड. क्योंकि यहाँ से अगर आप हेल्दी हैं तो आप बहुत हेल्दी, बहुत लंबा रह सकते हैं. यहाँ से अगर आप अनहेल्दी हैं तो आई एम नॉट श्योर कि आप कितनी देर तक हेल्दी रह सकते हैं. सो प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर थॉट्स. सो आई थिंक this makes sense to all of you and it is clear to all of you. So see you all very soon with something new, with something exciting. Hi Shruti. तो कुछ अच्छा या इंटरेस्टिंग और लेकर आएंगे आपके लिए इसी तरह से. जय श्री कृष्णा दमयंती जी. हाय श्रुति, हेलो, हाउ आर यू. तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो ऑन माय फेसबुक वॉल. सो अगर बाद में भी आप लोगों को लगे कि किसी के साथ शेयर करनी है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, डोंट स्टॉप योर सेल्फ एंड स्टार्ट शेयरिंग इट. श्रुति, नो वरीज श्रुति, ये वीडियो अभी मैं डालने वाली हूँ, यू कैन वॉच इट एनी टाइम. और आपको लगे कि किसी के साथ शेयर करनी भी इम्पॉर्टेंट है, किसी को इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, इस वीडियो तक पहुँचाने की अगर ज़रूरत लगे, प्लीज़ डू शेयर विद देम. आज का हमारा टॉपिक था कि क्यों यंग जनरेशन इतनी अफेक्टेड हो रही है. नॉट ओनली द हार्ट डिजीज़, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि जब हार्ट डिजीज़ जो ये है ना, जो हमने बात की कि डेप्रीवेशन ऑफ स्लीप, उससे क्या होता है, हार्ट में इन्फ्लामेशन होती है. और जब हार्ट में इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है तो वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को जन्म देती है. तो कहीं ना कहीं हर चीज़ एक से दूसरे में जुड़ी हुई है और एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड. सो प्लीज़ एक चीज़ को अगर रोकेंगे तो उसके साथ कनेक्टेड जो दूसरी चीज़ें खराब हैं वो भी वहीं रुक जाएंगी. और अगर एक चीज़ को नहीं रोकेंगे तो दूसरी चीज़ें जो खराब हैं वो नहीं रुकेंगी. सोना टाइम पे नहीं शुरू होगा तो इन्फ्लामेशन होगी हार्ट पे इन्फ्लामेशन होती है तो एसिडिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं. और फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो नो डाउट स्ट्रेस तो कहीं नहीं गया, स्ट्रेस बढ़ता है और फिर हम शुरू हो जाते हैं मेडिकेशंस पे. और फिर हम सोचते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया और सब कुछ शुरू हो गया. हम रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं. प्लीज़ स्लीप ऑन टाइम. जितनी मर्जी ज़रूरत लगे, जितना मर्जी सोशल मीडिया आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितनी मर्जी आपका कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है सिर्फ रात को होता है, ट्राई टू डू इट ऑन टाइम, बिफोर 9, बिफोर 10 मैक्सिमम. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू द सेम एज वेल. क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम पे नहीं सोती हूँ. ये लेसन सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं देने आई हूँ, दिस इज़ अ लेसन फॉर मी एज वेल. तो मुझे भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है क्योंकि नॉलेज सिर्फ लेने से या देने से नहीं आती है. नॉलेज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने से, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करने से बढ़ती है. तो अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी कोने में सक्सेस चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, फाइनेंसिस में, तो उसके रिलेटेड जितनी नॉलेज है ना आपको, जितना भी ज्ञान है आपके अंदर, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करें, अभ्यास करें. लोगों को माफ़ करने का अभ्यास करेंगे तो रिलेशनशिप सक्सेसफुल होंगे. लोगों की ऐसी चीज़ों को लेट गो करने का अभ्यास करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे. काम लगातार करते रहेंगे, अभ्यास करेंगे, रोज़ जाना है, रोज़ ये करना है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी. रोज़ जिम जाएंगे, रोज़ हेल्दी डाइट करेंगे, अभ्यास करेंगे कि आज का मेरा जो दिन था, मैंने आज का काम कर दिया. बाय प्रैक्टिस
you can make a man perfect. तो अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपकी लाइफ में सब चीज़ें आपको बेटर नज़र आएंगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. नॉट ओनली द हेल्थ, नॉट ओनली द वेल्थ, फाइनेंसेस, नॉट ओनली द रिलेशनशिप्स, किसी भी फील्ड में, हर चीज़ में सक्सेस पाने के लिए द इम्पॉर्टेंट थिंग, द की टू सक्सेस इज अभ्यास, द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखें, आपको भी रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे. जो भी अचीव करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करना बंद ना करें. बस अच्छी हेल्थ चाहते हैं, हार्ट की हेल्थ अच्छी चाहते हैं, तो प्लीज़ मेक अ प्रैक्टिस, रोज़ टाइम पर सोने की अभ्यास करें. स्ट्रेस ना लेने का अभ्यास करें कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ हो, छोटी हो बड़ी हो, मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी, मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा. अगर ये अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब प्रॉब्लम तो आती है लाइफ में, लेकिन मैं उसका स्ट्रेस नहीं लेती. सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड मेक योर लाइफ बेटर, हेल्दी, नॉट फॉर द सोशल मीडिया ओनली बट फॉर योर सेल्फ. जितना सिंपल जिएंगे उतना लंबा जिएंगे. एज सिंपल एज दैट. So this was all for today's session. Thank you so much for connecting with me, and see you all very soon once again. Till then, stay healthy, stay happy, and keep smiling no matter what. कुछ भी हो जाए, just keep smiling and spreading the love and light in your surroundings. Om Shri Matre Namaha. Thank you so much.